Good morning students, welcome back to the class 12. Subject business study. Today we are going with the new chapter revision as chapter number 4 planning, as we have already studied natures and significance of management, then we have seen principles of management, then we have seen business environment. Today we will start our new topic known as planning. In planning today we will see the definition or meaning of planning, then we will go with the importance of planning and then features of the planning in today's video. So let's begin with the topic business environments definition or meaning. According to the definition of Coons and O'Donnell, it has been mentioned that planning is an intellectual process, conscious determination of course of action and the basis of decision on purpose, fact and considering estimation. Here planning is predetermined concept. As I always say that planning has to be done in advance. So here planning is an intellectual process. It has to be determined the course of action. It has to be framed what to do, how to do and when to do. It has to be made according to the planning. In planning, you have to do all the processes for achieving the goal of the organization. It is considered as planning. In planning, you have to decide what to do, how to do, and when to do in advance. Whereas it involves all the objectives, all the goals, all the areas which has to be taken care by the organization in future. It has to be mentioned over there. Now in that we can say that you have to prepare your policies, your terms, your strategies according to the situations of the organization. So here it has been very much clear, planning has to be done in advance. There should be a certain framework where everyone has to work together and they have to take care of the decisions on the basis of organizational situations, market situations, political situations. The plannings are to be framed for the benefits of the organization. Here I have certain meaning also. I'll read it for you. Planning is the decision in advance what to do, how to do, and it is the one of the basic managerial function. As you know that we are having functions of management. We have 5 functions and one is coordination. These 6 points are also been pointed as functions. The functions has very much importance in business. If you don't follow any function, there may be a conflict, there may be a problems, there may be no proper situations of the organization. So functions are very important over here. Next point is related to meaning. It involves setting objectives, developing appropriate course of action to achieve the objective. You should know that organizational goal, what should be organizational goal, how we can achieve that. So by making proper decision on it, you can achieve your objectives. The planning that is developed has to have a given time frame, but time is a limited resources. It includes to be utilizing judiciously. Normally, whatever the targets you want to achieve, it has to be in time frame. Once you set the time frame, then you are in a way that you have to work accordingly. Once the time frame is fixed, the work, the conditions, the planning, the strategies has to be according to that time limit. Once you reach that particular target in a time, then you are a successful planner. You have done the successful things by achieving the target. Now we are going further with the importance of planning. In importance of planning, we are having 6 points. We have 6 points. One by one we will start that particular points. That points can be framed as planning provides direction, planning reduce the risk of uncertainty, planning reduce the overlapping and wasteful activities, planning promotes innovative ideas, planning facilitates decision making, planning establishes standards of control. We will see these 6 points one by one. The first point we will start with the planning provides direction.
if you do a planning in advance, then you will be having a certain direction to work on, and your course of action will be working according to that planning. So here I have a certain summarized pattern in written way. So I'll tell that in oral communication by stating in advance, by planning in advance how to work, how the work is to be done. Planning provides direction of an action. कैसे काम करना है, कब काम करना है और कितने टाइम में ख़त्म करना है, वो सब कुछ आप एडवांस में पहले से ही कर लेते हो अकॉर्डिंग टू प्लानिंग. Planning ensures that the objectives are clear states in order to develop appropriate course of action. प्लानिंग के अंदर आपका मेन टारगेट, आपका फोकस, सब कुछ रेडी होना चाहिए. अगर वो रेडी है तो आपका प्लान जो है वो प्रॉपरली सेट हो चुका है और आप उसके ऊपर एक्शंस लेने की शुरुआत कर रहे हो. इफ द प्लानिंग्स आर सेट, द डिपार्टमेंट एंड इंडिविजुअल्स कैन वर्क इन कोऑर्डिनेशन. एक बार आपका प्लान सेट हो जाता है, आपकी स्ट्रैटेजी सेट हो जाती है और आप अगर परफेक्टली काम कर रहे हो, आपने प्लानिंग स्ट्रैटेजीज बना ली है, तो कोर्स ऑफ एक्शंस डिपार्टमेंट में एंड इंडिविजुअली सब कोऑर्डिनेशन के थ्रू स्टार्ट हो जाता है. तो प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन. हर किसी को उनका रोल बताया जाता है, उनका कोर्स ऑफ एक्शन बताया जाता है और उनको ये भी बताया जाता है कि कैसे काम करना है, कब करना है और कितने टाइम में ख़त्म करना है, ये भी उनको बताया जाता है. रोल हम लोग डिस्क्राइब कर देते हैं इंडिविजुअल्स को एंड डिपार्टमेंट को, अगर प्लानिंग आपका परफेक्ट हो जाता है तो. नेक्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. प्लानिंग जो होता है वो अनसर्टेनिटी या रिस्क को रिड्यूस कर देता है. उसको हम लोग एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था बिजनेस रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बट इट कैन बी रिड्यूस्ड. हम लोग उसको रिड्यूस कर सकते हैं लेकिन उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते. प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच एनेबल्स द मैनेजर टू लुक अहेड एंड एंटिसिपेटेड चेंजेस. हम लोग प्लानिंग इस तरह से करते हैं कि हम लोग फोरकास्ट भी करते हैं और इंटरप्रीट भी करते हैं और एस्टिमेशन लगाते हैं कि क्या प्लानिंग की वजह से हम लोग क्या अचीव कर सकते हैं या कौन सा टारगेट अचीव कर सकते हैं इन एडवांस. Change or event cannot be eliminated, but by deciding the planning and course of action in advance manager can anticipate it and adjust the planning according to the situation. हम लोग चेंजेस को या एनवायरमेंटल इवेंट्स को रोक तो नहीं सकते या एलिमिनेट भी नहीं कर सकते, बट वो सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं क्योंकि वो नेचुरल है और अंडर बिजनेस कंट्रोल नहीं होता. तो यहाँ पर क्या होता है कि प्लानिंग करते वक्त हम लोग एज एन मैनेजर एडवांस में हम लोग कुछ ऐसा भी प्लानिंग करते हैं कि इन केस अगर सिचुएशन में कुछ चेंजेस आ जाए या इवेंट्स कुछ अकर हो जाए जिससे हमारे बिजनेस को कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं एक्सटर्नल सोर्सेज की वजह से, तो हम लोग क्या प्लान करें और कैसे प्लान करें जिससे हम लोग वो सिचुएशन को हैंडल कर सके. तो एडवांस प्लानिंग हम लोग करके रखते हैं. और अनसर्टेनिटी जो होती है वो किसी के हाथ में नहीं है, क्योंकि रिस्क जो है वो अनसर्टन ही होता है. ये कभी भी आपके लिए चेंज हो सकता है और कभी भी आपको नुकसान में ले जा सकता है. तो ऐसे नुकसान को बचाने के लिए आपको एडवांस में प्रिपरेशन करनी पड़ती है. पॉइंट नंबर 3 इज प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल रिसोर्सेज और एक्टिविटीज. यस, अगर आप प्लानिंग करते हो तो प्लानिंग के थ्रू आप अवॉइड कर सकते हो कॉन्फ्लिक्ट्स, कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सब कुछ आप अवॉइड कर सकते हो. अननेसेसरी या यूजलेस वर्क के ऊपर आप ज़्यादा मेहनत नहीं करोगे, आप रिड्यूस कर देते हो. नॉर्मली यहाँ पर आप ओवरलैपिंग नहीं करते, बार बार रिपीट नहीं करोगे सेम मिस्टेक या सेम वर्क. यहाँ पर आप अपना रिसोर्सेज जो है उसको प्रॉपरली यूज़ करते हो. यू कैन यूटिलाइज योर resources in a better way and better condition. Plus you can go with the help of the planning. You should know what you have done in past. So planning reduce overlapping and wasteful activities. Planning serves as the basis of coordinating the activities and efforts of the different divisions, department and individual. It reduces useless and redundant activities, avoid confusions, conflict and misuses and ensure clarity in through the action. नॉर्मली अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो, प्लानिंग अगर करते हो,
तो आपका एक्शन ऑफ कोर्स क्या है वो भी एक लाइन में चल रहा है, आप उसकी एनालिसिस करते रहते हो कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो एग्जैक्टली। तो ये पता चलता है प्लानिंग के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। अगर आप प्लानिंग रखते हो तो आपका जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, जहाँ पे मैनेजर्स हैं, उनके पास नए नए आइडियाज़ आते हैं, नए नए आइडियोलॉजीज होती हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा हो सकता है। और नॉर्मली मैनेजर्स हमेशा कुछ ना कुछ इनोवेटिव करते ही रहते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होते रहे। पॉइंट नंबर 5 इज प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। अगर आप प्लानिंग करते हो तो प्लानिंग के थ्रू डिसीजन लेने में प्रिडिक्शन करने की वजह से आपका डिसीजन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि आप ऑलरेडी प्लानिंग करते वक्त अपना टारगेट सेट करते हो। टारगेट सेट करने के साथ में आप अपने फ्यूचर कंडीशंस को भी प्रिडिक्ट कर लेते हो। तो क्या होता है कि अगर इन करंट सिचुएशन कुछ मुझे डिसीजन लेना होता है तो मैं कोर्स ऑफ एक्शन में चेंजेस ले सकता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्लानिंग करके रखी हुई है। पॉइंट नंबर 6 इज प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स ऑफ कंट्रोल। प्लानिंग जो होता है वो आपका फर्स्ट फ्रेज है, और फर्स्ट फ्रेज से हम लोग कंट्रोलिंग तक जाते हैं। तो कंट्रोलिंग जो है वो नॉर्मली प्लानिंग का एक प्री रिक्विजिट पार्ट है। कंट्रोलिंग क्या करते हैं, इन कंट्रोलिंग हम लोग चेक करते हैं कि हमारा जो परफॉर्मेंस है वो बराबर हुआ है कि नहीं हुआ है, हमारा टारगेट अचीव हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर अचीव नहीं हुआ है तो उसको किस तरह से हम लोग आगे के प्लानिंग्स में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्लानिंग क्या है, प्लानिंग प्रोवाइड्स स्टैंडर्ड्स अगेंस्ट विच द एक्चुअली परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। कंट्रोलिंग के थ्रू हम लोग परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, और परफॉर्मेंस जब मेजर होता है तो मेजर होने पे हमें पता चलता है कि हम लोग कहाँ पे लैग कर रहे हैं और कहाँ पे हमें एडवांस चल रहे हैं। और लैकिंग अगर हम कर रहे हैं तो लैकिंग को किस तरह से चेंज किया जा सकता है वो हम लोग प्लानिंग के थ्रू देख सकते हैं। तो प्लानिंग की इम्पोर्टेंस हमने पढ़ी कि इम्पोर्टेंस क्या क्या है प्लानिंग की। नाउ वी विल सी द फीचर्स ऑफ प्लानिंग। अब फीचर्स ऑफ प्लानिंग के अंदर हमारे पास 7 पॉइंट्स है, वो 7 पॉइंट में 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट। प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। क्योंकि प्लानिंग जो है वो हमें पहले से प्रिपेयर करना होता है, और प्लानिंग के थ्रू हम लोग हमारा डिजायर्ड टारगेट फिक्स करते हैं। तो प्लानिंग जो है वो हमें एनहांस करता है, हमें मोटिवेट करते रहता है कि हमारा जो मेन प्राइम टारगेट है उसको अचीव करना है ऑन टाइम। तो प्लानिंग के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन के पास गोल्स हैं और स्पेसिफिक गोल्स हैं जिसको अचीव करना है ऑन टाइम। तो ये प्लानिंग से ही पॉसिबल है। प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, यस इट इज, क्योंकि प्लानिंग के बगैर तो आप आगे कुछ चल ही नहीं सकते, क्योंकि प्लानिंग आपका बेस है, आपका फाउंडेशन है। ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का पहला पार्ट है प्लानिंग। प्लानिंग के बगैर आप आगे कुछ एक्सपैंड नहीं कर सकते। प्लानिंग के बगैर आप कोर्स ऑफ एक्शन नहीं ले सकते, कोई डिसीजन नहीं ले सकते। तो प्लानिंग होना ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 3, प्लानिंग इज एन परवेसिव। प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव में होता क्या है, क्योंकि प्लानिंग जो है वो हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट में रिक्वायर्ड है, हर डिपार्टमेंट में रिक्वायर्ड है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग हर जगह प्लानिंग करते हैं। द प्लानिंग का स्कोप जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए, अलग अलग लेवल्स के लिए एक ही जैसा होना चाहिए। द स्कोप ऑफ प्लानिंग इज डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल एंड फॉर अ डिफरेंट डिपार्टमेंट। प्लानिंग सब अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग हो सकती है, प्लानिंग सब लेवल ऑफ मैनेजमेंट्स के लिए अलग हो सकती है, लेकिन उनका जो प्राइम टारगेट है वो सेम रहेगा। पॉइंट नंबर 4 इज प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। प्लानिंग कभी भी रुकती नहीं, जब तक आपका बिजनेस चल रहा है तब तक प्लानिंग चलते रहेगा। प्लानिंग कैन बी ऑन शॉर्ट टर्म, कैन बी लॉन्ग टर्म, डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल अचीवमेंट ऑफ गोल्स। प्लानिंग जो है ना वो एक तरह का कंटिन्यूस प्रोसेस है, जिसके अंदर हम लोग प्लानिंग फ्रेम करते रहते हैं और टारगेट्स अचीव करने की कोशिश करते हैं। समटाइम्स टारगेट्स गेट्स अचीव, समटाइम डजंट। सो यहाँ पर प्लानिंग के थ्रू हम लोग हमारा टारगेट अचीव करने की कोशिश करते हैं, और प्लानिंग कंटिन्यूसली चलते रहता है क्योंकि आप उसके ऊपर वर्क कर रहे हो। पॉइंट नंबर 5 जो है वो प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग कभी भी फ्यूचर के लिए ही हम लोग बनाते हैं, क्योंकि प्लानिंग हम लोग प्रेजेंट के लिए तो नहीं करते। प्लानिंग जो करते हैं वो फ्यूचर के लिए करते हैं कि फ्यूचर में हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो फ्यूचर प्लानिंग के लिए हम लोग इफेक्टिवली
बेनिफिशियली हम लोग प्लानिंग करते हैं और हमारा जो गोल होता है वो पॉसिबली कंप्लीट हो जाए, उसी हिसाब से हम प्लानिंग भी करते हैं. सो प्लानिंग इज एन फ्यूचरिस्टिक. नेक्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग. प्लानिंग के वजह से हम लोग क्योंकि ऑलरेडी प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग के वजह से हम लोग डिसीजन ले सकते हैं. कैसे डिसीजन ले सकते हैं? इन केस अगर आज मैंने कुछ सिचुएशन में चेंजेस देख रहा हूँ तो मैं अल्टरनेटिव ऑप्शंस का इस्तेमाल करके डिसीजन ले सकता हूँ, लेकिन मेरा जो प्राइम टारगेट है उसको इफेक्ट ना हो. तो इसीलिए प्लानिंग हम लोग हमेशा एक नहीं करते, 2, 3, 4 तरीके से हम लोग प्लानिंग करते हैं. तो 4-5 प्लानिंग्स हम लोग ऑलरेडी मेक करके ही रखते हैं कि इन केस अगर एक्सटर्नल चेंजेस होते हैं या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस आता है तो तुरंत हम लोग उसको स्विच कर सकें, और स्विच करने के बाद में हमारा डिसीजन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स के लिए रहे. पॉइंट नंबर 7 इज प्लानिंग इज एन मेंटल एक्सरसाइज. यस, प्लानिंग आपके दिमाग का खेल है. प्लानिंग एक ऐसा पार्ट है ना जिसमें आपको लॉजिक्स लगाने पड़ते हैं, सिस्टमैटिक थिंकिंग करनी पड़ती है और साथ साथ में आपको गेस करना पड़ता है कि आगे फ्यूचर ऑफ कोर्स ऑफ एक्शंस क्या करने हैं. तो ये है आपके 7 पॉइंट्स जो हमने आज डिस्कस किए. आज हमने मीनिंग डेफिनेशन देखा ऑफ प्लानिंग, उसके बाद में हमने देखा इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग और उसके बाद में हमने 7 पॉइंट्स ऑफ फीचर्स देखे. दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स. We will continue next revision part in next video. That's it for today. Thank you.